السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بات سنو، دل تھام کر سنو، خاموشی سے سنو، کیونکہ یہ عام بات نہیں، یہ حفاظت کی بات ہے، یہ نجات کی بات ہے، یہ نور کی بات ہے، یہ سورۃ الفلق کی بات ہے، وہ سورہ جسے اللہ نے خود پناہ کا دروازہ بنایا، وہ سورہ جسے پڑھ کر اندھیرے لرزتے ہیں، وہ سورہ جسے پڑھ کر جادو ٹوٹتا ہے، وہ سورہ جسے پڑھ کر نظر بد جل جاتی ہے۔ آج میں تمہیں وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو عام نہیں، جو کتابوں میں کم ملتی ہے، جو صرف دل والوں کو دی جاتی ہے۔ یہ بات منسوب ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے، لیکن سنو، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ قرآن کے اصول پر ہے، یہ سنت کے دائرے میں ہے۔ اب ذرا دل حاضر کرو، سانس آہستہ کرو، اور اس ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا، کیونکہ آخر میں ایک راز ہے جو میں ابھی نہیں کھولوں گا۔ سورۃ الفلق کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی۔ یہ صرف لفظ نہیں، یہ اعلان ہے، اعلان جنگ اندھیروں کے خلاف۔ فلق یعنی اندھیرے کو چیرنے والی روشنی۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، جب بندہ فلق کو سمجھ لیتا ہے تو خوف خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پہلا دشمن شر ما خلق، ہر پیدا کی گئی چیز کا شر، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کرے۔ دوسرا دشمن غاسق اذا وقب، اندھیرا جب گہرا ہو جائے۔ یہ صرف رات نہیں، یہ دل کا اندھیرا بھی ہے۔ تیسرا دشمن النفاثۃ فی العقد، گرہوں میں پھونک مارنے والے جادو، حسد، دل کی گرہیں۔ چوتھا دشمن حاسد، جب وہ حسد کرے۔ شیخ جیلانی فرماتے ہیں، حاسد کا تیر نظر نہیں آتا، لیکن لگتا ضرور ہے۔ اسی لیے سورۃ الفلق صرف پڑھنے کی نہیں، جینے کی سورہ ہے۔ اب سنو اصل نقطہ، جب تم سورۃ الفلق پڑھتے ہو لیکن دل غافل ہو تو اثر کم ہو جاتا ہے، اور جب دل حاضر ہو تو ایک آیت پہاڑ ہلا دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، فلق کو رات میں پڑھو، لیکن دن کے یقین کے ساتھ پڑھو، لیکن ڈر کے بغیر، کیونکہ ڈر پناہ کو کمزور کرتا ہے، یقین پناہ کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ سورہ کمزوروں کی لاٹھی ہے، بے سہارا لوگوں کی ڈھال ہے، لیکن شرط سنو، صرف زبان نہ پڑھیں، دل بھی پڑھیں۔ اب تم سے سوال ہے، کیا تم واقعی محفوظ ہونا چاہتے ہو؟ اب سنو، دل کو اور قریب لاؤ، سانس کو اور ہلکا کرو، کیونکہ اب بات سطح کی نہیں، گہرائی کی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل حفاظت لفظوں میں نہیں، حال میں ہوتی ہے۔ حال یعنی دل کی کیفیت۔ سورۃ الفلق جب زبان سے اترتی ہے تو آواز بنتی ہے، اور جب دل سے اترتی ہے تو نور بنتی ہے۔ یہ نور نظر کو جلاتا ہے، یہ نور جادو کی جڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، اللہ نے فرمایا، قل اعوذ، کہو میں پناہ لیتا ہوں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا سن لو یا یاد رکھو، بلکہ فرمایا کہو، یعنی اعلان کرو۔ شیخ جیلانی فرماتے ہیں، جب بندہ پناہ کا اعلان کرتا ہے تو شیطان پیچھے نہیں، نیچے گرتا ہے۔ اب اگلا لفظ سنو، بربی، رب یعنی پالنے والا، وہ جو بچپن سے آج تک خاموشی سے پالتا رہا۔ جب تم یہ لفظ کہتے ہو تو دراصل اپنی کمزوری مان لیتے ہو، اور یہی کمزوری
अल्लाह के यहां सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब फलक पर आओ। फलक अंधेरे को चीरने वाली लकीर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जो शख्स फलक को समझ गया वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि वो जानता है अंधेरा कितना ही गहरा हो, फजर जरूर आती है। अब सुनो, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। नजरे बद सिर्फ आंख से नहीं लगती, दिल से भी लगती है। और जादू सिर्फ अमल से नहीं होता, नीयत से भी होता है। इसीलिए सूरतुल फलक नीयत की इस्लाह भी है। जब तुम इसे पढ़ो तो दिल में कहो, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी से नहीं डरता। ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी की पनाह नहीं चाहता। शेख जिलानी फरमाते हैं, ये जुमला अगर दिल से निकल जाए तो हिफाजत खुद चल कर आती है। अब एक और नुक्ता, सूरतुल फलक हमेशा सूरतुन नास से पहले क्यों आई? क्योंकि पहले बाहर के दुश्मन, फिर अंदर के दुश्मन। पहले जादू नजर हसद, फिर वसवसा। अगर बाहर का दरवाजा बंद ना हो तो अंदर का दरवाजा भी कमजोर रहता है। इसीलिए फलक ढाल है और नास तलवार। अब मैं तुम्हें शेख जिलानी का बताया हुआ एक रूहानी उसूल बताता हूं। ये अमल नहीं, ये समझ है। वो फरमाते हैं, जब तुम्हें बुला वजह घबराहट हो, दिल भारी हो, नींद खराब हो, तो समझ लो कुछ ना कुछ असर है। ऐसे वक्त सूरतुल फलक पढ़ो। लेकिन शर्त यह है, पढ़ते वक्त किसी का चेहरा जहन में ना लाओ, क्योंकि चेहरा ख्याल को बांध देता है और सूरतुल फलक आजादी चाहती है। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी सूरतुल फलक रोते हुए पढ़ी है? अगर नहीं तो तुमने उसे अभी तक महसूस नहीं किया, क्योंकि जब दिल टूटता है तो दुआ सीधी ऊपर जाती है। अब यहां मैं रुक रहा हूं, क्योंकि अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा वो लम्हा, वो वक्त जब सूरतुल फलक 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाती है। और आखिर में एक ऐसा राज जो अगर तुमने जान लिया तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि बाज लोग नजर में क्यों आ जाते हैं और बाज नजर से ही गायब रहते हैं। ये राज अगले हिस्से में। अब सुनो, ये हिस्सा और भी नाजुक है और भी गहरा। दिल को मजबूत रखना, क्योंकि यहां नफ्स खामोश नहीं रहता। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर इंसान पर हर वक्त, हर लम्हा एक नजर नहीं होती, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान खुला होता है और शैतान इसी लम्हे का इंतजार करता है। वो लम्हा कौन सा है? जब तुम बहुत खुश हो और शुक्र भूल जाओ, या जब तुम बहुत गमगीन हो और सब्र छोड़ दो। यही वो लम्हे हैं जब नजर लगती है, जब असर दाखिल होता है। इसीलिए सूरतुल फलक सिर्फ मुसीबत की नहीं, नेमत की हिफाजत भी है। अब सुनो, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। नजरे बद हमेशा दुश्मन से नहीं आती, कभी कभी मोहब्बत से भी आती है, गैर इरादी लेकिन असर रखती है। इसीलिए शेख जिलानी फरमाते हैं, हर नेमत के बाद फलक पढ़ा करो, क्योंकि नेमत अगर महफूज ना हो तो आजमाइश बन जाती है। अब एक और नुक्ता, दिल को थाम लो। जादू अक्सर वहां असर करता है जहां दिल कमजोर हो, जहां नमाज में गफलत हो, जहां जिक्र में वक्फा हो। सूरतुल फलक उस वक्फे को भरती है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले उसे पढ़ा करते थे। ये नींद की दुआ नहीं, ये हिफाजत का पहरा है। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बताया हुआ एक खामोश उसूल सुनो। वो फरमाते हैं, सूरतुल फलक जल्दी में ना पढ़ो, क्योंकि जल्दी दिल को पीछे छोड़ देती है। आहिस्ता पढ़ो, सांस के साथ, हर आयत पर एक सांस, ताकि लफ्ज दिल में उतरे। अब वो लम्हा जिसका वादा था, फजर से पहले का वक्त, जब रात अपनी आखिरी सांस लेती है और दिन पैदा होने वाला होता है, यही फलक का वक्त है। इस वक्त सूरतुल फलक पढ़ो, लेकिन शर्त सुनो, किसी से बात ना करो,
खामोशी इस अमल की चाबी है। शेख जिलानी फरमाते हैं, जो इस वक्त फलक पढ़ ले वो दिन भर अल्लाह की पनाह में रहता है। अब एक सवाल जो दिल को हिला दे, क्या तुमने कभी अपनी हिफाजत के लिए अल्लाह पर पूरा भरोसा किया है, या अल्फाज को ढाल बनाया है और दिल कहीं और रखा है? यही फर्क असर और बेअसरी का है। अब मैं यहां एक और राज छोड़ रहा हूं। सूरतुल फलक की एक आयत ऐसी है, अगर वो आयत तुम्हारे मामूल में आ जाए तो किसी का हसद तुम्हें छू नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है, वो आयत जबान से नहीं अमल से पढ़ी जाए। वो आयत कौन सी है, ये राज अगले हिस्से में। यहां मत रुको, दिल को मत हल्का समझो। आगे वो बात है जो जिंदगी बदल देती है। अब सुनो, ये हिस्सा दिल के पर्दे हटाने वाला है। यहां बात सिर्फ सुनने की नहीं, अपनाने की है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह के कलाम को आदत बना लेता है तो दुश्मन रास्ता बदल लेता है। अब वो आयत सुनो जिसका वादा था, वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद। हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। ये आयत सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये आयत जिया करती है। क्योंकि हसद हमेशा ऐलान नहीं करता, वो मुस्कुराहट में भी हो सकता है, वो तारीफ में भी हो सकता है। इसीलिए शेख जिलानी फरमाते हैं, अगर तुम किसी के सामने नेमत जाहिर करो तो दिल में फलक पढ़ लो। जबान खामोश रखो, दिल बोलने लगे। यही अमल से पढ़ना है। अब एक और गहरी बात सुनो, हर नजर फौरन असर नहीं करती। कुछ नजर दिल में बैठ जाती है और वक्त आने पर जागती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं अचानक सब बिगड़ गया। वो अचानक नहीं होता, वो जखीरा होता है। सूरतुल फलक इसी जखीरे को जलाने आई है। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी का एक और नुक्ता, वो फरमाते हैं, अगर घर में बिला वजह झगड़ा बढ़े, बच्चों की तबीयत बदल जाए, बरकत कम हो जाए, तो समझ लो नजर या असर है। ऐसे वक्त घर में आवाज से फलक पढ़ो, लेकिन चीख कर नहीं, सुकून से, क्योंकि शैतान सुकून से घबराता है। अब एक सवाल जो खुद से पूछो, क्या तुमने कभी अपने घर की दीवारों के लिए दुआ की है? अगर नहीं तो फलक से शुरू करो, क्योंकि ये सूरा दीवारों पर नहीं फजा में असर करती है। अब वो राज जो कम लोग समझते हैं, सूरतुल फलक अकेली सूरा नहीं, ये बंदे और रब के दरमियान एक मुआहिदा है। तुम कहो मैं पनाह लेता हूं, और अल्लाह फरमाता है मैं पनाह देता हूं, लेकिन शर्त वफा है। वफा यानी गुनाह पर जिद ना हो, दिल में नरमी हो। शेख जिलानी फरमाते हैं, जो बंदा पनाह मांगे और खुद गुनाह से ना बचे तो वो दरवाजा खटखटाकर वापस चला जाता है। अब आखिरी बात इस हिस्से की, अगर तुम चाहते हो कि सूरतुल फलक तुम्हारी ढाल बन जाए तो एक काम करो, दिन में एक बार खामोशी से बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ ये सोचो, ऐ अल्लाह मैं वाकई कमजोर हूं। ये सोच सबसे बड़ी दुआ है। यही सोच फलक को जिंदा करती है। अब मैं यहां एक और राज छोड़ रहा हूं। कुछ लोग सूरतुल फलक पढ़ते हैं फिर भी मुतासिर रहते हैं, और कुछ कम पढ़ते हैं फिर भी महफूज रहते हैं। इस फर्क की वजह एक आदत है। वो आदत कौन सी है, ये राज अगले हिस्से में। अब सुनो, ये इख्तिताम नहीं, ये बेदारी है। ये वो मकाम है जहां बात दिल के अंदर उतरती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हिफाजत किसी एक लम्हे की नहीं होती, ये एक रास्ता है, और इस रास्ते का नाम इताअत है। वो आदत जिसका जिक्र था, वो आदत है गुनाह को मामूल ना बनाना, क्योंकि सूरतुल फलक रोशनी है, और रोशनी अंधेरे के साथ एक जगह नहीं रहती। तुम फलक पढ़ो लेकिन जुल्म पर कायम रहो तो असर रुक जाता है। तुम फलक पढ़ो लेकिन दिल में कीना रखो तो ढाल कमजोर हो जाती है। यही वो बात है जो शेख जिलानी खामोशी से सिखाते थे। वो फरमाते हैं,
अल्लाह की पनाह साफ दिल में उतरती है। अब जरा अपने दिल से पूछो, क्या मैं वाकई अल्लाह की पनाह में रहना चाहता हूं या सिर्फ मुश्किल वक्त में लफ्जों को आवाज देना चाहता हूं? यह सवाल अगर सच्चा हो तो जवाब खुद आ जाता है। सूरतुल फलक को आदत बना लो, खौफ में नहीं, सुकून में, क्योंकि जो सुकून में फलक पड़ता है वो तूफान में नहीं डरता। नजर, जादू, हसद, ये सब हकीकत है, लेकिन इनसे बड़ी हकीकत अल्लाह की पनाह है। जब बंदा दिल से कहता है मैं पनाह लेता हूं, तो आसमान खामोश नहीं रहता। फरिश्ते उसके गिर्द हिसार बनाते हैं और शैतान रास्ता बदल लेता है। आखिर में बस इतना याद रखना, सूरतुल फलक को विर्द ना समझना, ये अहद है, ये रब के साथ एक ताल्लुक है। जब भी पढ़ो ये सोच कर पढ़ो, ऐ अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकता। ये जुमला अगर दिल में बैठ गया तो यकीन करो, दुनिया की कोई नजर, कोई जादू, कोई हसद तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही सूरतुल फलक का असल राज है और यही शेख अब्दुल कादिर जीलानी का खामोश पैगाम। अल्लाह हमें समझने वाला दिल अता फरमाए और अपनी कामिल पनाह में रखे। ऐ अल्लाह, ऐ सबसे ज्यादा सुनने वाले, ऐ सबसे ज्यादा जानने वाले, तो उस एक इंसान के हाल को जानता है जिसके लिए ये दुआ उठ रही है। ऐ अल्लाह, वो इंसान जो अंदर से टूट चुका है लेकिन लोगों के सामने मुस्कुराता है, तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे हर दर्द को जानता है। ऐ अल्लाह, अगर उस पर किसी की नजर है तो तू उसे लौटा दे, अगर उस पर किसी का हसद है तो तू उसे जला दे। ऐ अल्लाह, अगर उस पर कोई जादू है तो उसे जड़ से काट दे, अगर कोई असर है तो उसे मिटा दे। ऐ अल्लाह, उसके दिल पर जो बोझ है तो उसे हल्का कर दे, उसके सीने की तंगी को कुशादगी में बदल दे। आमीन। अल्लाह हाफिज।